Hello everyone. Today we are going to discuss with exercise 8.4 of the chapter Introduction of Trigonometry, which is based on the topic trigonometric identities. Very first of all, from where we got all the identities? हमें ये identities मिली कहाँ से? So we are going to take a right angled triangle, which is right angled over here. Here we are having perpendicular. This one is base. Here we are having hypotenuse. Now we all are aware with the ratios which we have in it, that is sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equals to base upon hypotenuse, tan theta equals to perpendicular upon base, then cosec theta equals to hypotenuse upon perpendicular, that is reciprocal of sine theta. Then we have sec theta, that is reciprocal of cos theta, which will be equals to hypotenuse upon base, and then cot theta, that is equals to base upon perpendicular. Now we also have a relation of Pythagoras theorem for a right angled triangle. That is, by Pythagoras theorem we get perpendicular square plus base square इक्वल्स टू hypotenuse स्क्वायर. अगर हम इन सबको h स्क्वायर से डिवाइड कर दें, दैट इज इफ यू डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय hypotenuse स्क्वायर, सो वी गेट p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. अब जैसा कि यहाँ पे h स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो विल बी गेटिंग 1. अब p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज sin square theta, so this will become sin square theta plus b upon h is cos theta, so this will become cos square theta equals to 1. तो ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी. ना जैसे हमने यहाँ पर h स्क्वायर से डिवाइड किया है, अगर हम इसको b स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इन दैट केस विल बी गेटिंग p स्क्वायर अपॉन b square upon b square equals to h square upon b square. Now p square upon b square, that is tan square theta. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, सो प्लस 1 इक्वल्स टू h अपॉन b. h अपॉन b मतलब sec theta, so we get sec square theta. Now अगर इस पाइथागोरस थ्योरम के रिलेशन को हम p स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इन दैट केस वी गेट p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. नाउ वी वेरी वेल नो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस b upon p is cot theta, so cot square theta equals to h upon p is cosec, so this will be cosec square theta. So here we get all the three identities which is going to be used in this exercise. Now we are going to begin with exercise 8.4, and in this exercise we are having the first question as express sin a, sec a and tan a in terms of cot a. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं sin a से. sin a का रिलेशन डायरेक्टली cot के साथ किसी में भी नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी में cosec और cot के बीच में रिलेशन है और cosec sin का रेसिप्रोकल होता है. सो वी कैन राइट दिस वन एज cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. अब कॉसेक को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. फिर रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, तो रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए.
Now on taking square root on both the side, we get sin A equals to 1 upon root 1 plus cot square A. ये होगी हमारी sin A की वैल्यू. देन sec के लिए हमारे पास फिर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे, तो वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड आइडेंटिटी, दैट इज sec square A equals to 1 plus tan square A. Now tan को हम लोग cot में लिख सकते हैं, that is sec square A equals to 1 plus 1 upon cot square A. फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, सो वी गेट sec square A equals to, बेस में हमारे पास कॉट स्क्वायर ए होगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. फिर स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट sec a इक्वल्स टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट ए. देन ये हमारा sec भी हो गया. देन वी गो फॉर द tan. tan के लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, सो tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot. Now in question number 2 we have to represent all of the trigonometric ratios in the terms of sec a. So we can start with the cos, because cos का डायरेक्ट रिलेशन है इसमें, that is cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a. तो ये एक डायरेक्ट हो गया. फिर उसके बाद हमारे पास sec का tan के साथ भी रिलेशन है, सो वी कैन राइट दिस वन एज 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a. 1 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1, और स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास आएगा tan a इक्वल्स टू द रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1. अब tan से हम लोग cot भी निकाल सकते हैं, दैट इज cot a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a, और tan a की वैल्यू हमारे पास ये है, सो वी कैन प्लेस दिस वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1. देन हमारे पास cos, tan, cot हो चुका है. देन विल मूव फॉर द cosec और sin. sin में जाने के लिए हमारे पास cos के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सो वी कैन टेक विद sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. अब इसमें cos को पहले उधर भेज देंगे, सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a. cos a की वैल्यू है 1 अपॉन sec a, सो दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a. एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a. फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट sin a इक्वल्स टू द रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 होल अपॉन sec a. ये हमारे पास sin a की वैल्यू आ गई. फिर cosec की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल से हमें मिल जाएगा, दैट इज cosec a इक्वल्स टू sec a अपॉन रूट sec स्क्वायर a माइनस 1. Here we are having question number 3. अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos स्क्वायर 17 एंड cos स्क्वायर 73. तो इसमें या तो हम इन दोनों को 63 में चेंज कर दें या फिर इन दोनों को 27 में चेंज करें. एंड सिमिलरली ओवर हियर, या तो हम इन दोनों को 17 में चेंज करें या फिर इन दोनों को 73. और उसको चेंज करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है cos, सो दिस कैन बी
written as cos square 90 minus 63 प्लस इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस का कॉम्प्लीमेंट है साइन, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस cos square 73. Then we are going to solve it, and this will become cos square 27 plus sin square 27 whole upon sin square 73 plus cos square 73. अब sin square theta plus cos square theta, that is equals to 1. So this will be 1 whole upon, this is again sin square theta plus cos square theta, that is 1. So your answer is 1 over. Now we are having the second part of the question number 3, and in this question again we are having sin 25 cos 65 cos 25 and sin 65. तो या फिर हम इन सबको 25 में चेंज करें या फिर 65. So we are going to just change all of them into 25. तो इसको एज इट इज कॉपी करेंगे हम लोग sin 25, देन cos 65 का कॉम्प्लीमेंट होगा sin 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 65 प्लस इसको एज इट इज कॉपी करिए डॉट sin 65 का हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 65. नाउ दिस विल बिकम sin 25 into sin 25 plus cos 25 into cos 25, and it will be sin square 25 plus cos square 25. Again sin square theta plus cos square theta, that is equals to 1 as answer. Now in question number 4, first part we are having 9 sec square a minus 9 tan square. So we can take the 9 common from both of it, and this will become sec square a minus tan square a. अब हमें पता है sec square a minus tan square a एक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, दैट इज 1 प्लस tan square a इक्वल्स टू sec square a. और अगर हम इस sec square a की वैल्यू यहाँ पे पास कर दें, देन इट विल बिकम 9 इन ब्रैकेट 1 प्लस tan square a माइनस tan square a. अभी tan square कैंसिल आउट, सो यू आर लेफ्ट विथ 9 into 1, that is equals to 9 as answer. Now here we are having this relation, that is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. So very first of all we are going to change all of them into the form of sin and cos. So this will become 1 plus sin theta upon cos theta plus 1 upon cos theta, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos theta अपॉन sin theta माइनस 1 अपॉन sin theta. अब इसमें एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा बेस में cos theta, एंड दिस विल बिकम cos theta प्लस sin theta प्लस 1, और इधर हो जाएगा sin थीटा इन बेस एज अ डिनोमिनेटर, और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. अब अगर हम इस cos थीटा प्लस sin थीटा को a कंसिडर कर लें और इसको b कंसिडर कर लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो दिस विल बी रिटन एज sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास cos थीटा एंड sin थीटा. देन यहाँ पर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं हम लोग. सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन sin थीटा एंड cos थीटा.
नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सो दिस कैन बी टेन एज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2। दैट इज योर आंसर। नाउ वी आर हैविंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस वन वी आर हैविंग इन अ ब्रैकेट sec a प्लस tan a एंड इन द अदर वन 1 माइनस साइन a. इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इन अ ब्रैकेट, और ये हमारे पास एज इट इज कॉपी होगा। देन इसमें एलसीएम लेने के बाद हमारे पास होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे एज इट इज 1 माइनस साइन ए। अब न्यूमरेटर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इससे इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कॉस ए। दैट्स योर आंसर। नाउ इन द फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। वी वेरी वेल नो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos x स्क्वायर ए। सो दिस कैन बी टेन एज sec स्क्वायर ए अपॉन cos x स्क्वायर ए, एंड sec a का रेसिप्रोकल होता है cos, सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और cos a का रेसिप्रोकल होता है sin, सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर ए। अब sin अपॉन cos होता है tan, सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर ए। दैट्स योर आंसर। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, we have to prove LHS equals to RHS, and here we are having this relation. Now whenever we have the question like this, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम प्रोसीड इसको यहाँ से करेंगे, that is from this portion, that is RHS from here. So RHS equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वी आर हैविंग 1 प्लस कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देन इसके स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। देन इस साइन को दोनों के नीचे अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन sin theta. So this will become 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta to the whole square. 1 upon sin theta will become cosec theta minus cos theta upon sin theta will become cot theta. That to the whole square, and which is equals to LHS. Hence proved. Now we are having the second part of the question of 5, and in this question we are having cos A upon 1 plus sin A and 1 plus sin A upon cos A, that is to be proved as 2 sec A. अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, सो LHS इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे और दिस विल बिकम cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, और यहां पर हो जाएगा cos A इंटू cos A, दैट इज cos स्क्वायर ए प्लस
1 plus sin a into 1 plus sin a, that is 1 plus sin a to the whole square. फिर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin. With the identity we have used a square plus b square plus 2ab, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 sin a आ गए, और नीचे एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेंगे, cos a 1 plus sin, then cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a, this will become 1. So ये हो गया हमारे पास 1 plus 1 plus 2 sin a whole upon cos a and 1 plus sin. Then यहाँ पे 1 plus 1 2 होगा, and this will become 2 plus 2 sin a whole upon cos a 1 plus sin. Then इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, and this will become 2 1 plus sin a whole upon cos a 1 plus sin. ये ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा 2 अपॉन cos a, और cos का रेसिप्रोकल होता है sec. So this can be written as 2 sec. That is equals to your RHS. Hence proved. Now we are having the third part of the question number 5, and in this question we have to prove that tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta and cosec theta. For this, we are going to change all of the terms in the sin and cos. So this can be written as LHS equals to sin theta upon cos theta whole upon 1 minus cos theta upon sin theta. And similarly over here, that is cos theta upon sin theta whole upon 1 minus sin theta upon cos theta. फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और टेकिंग एलसीएम ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा होल अपॉन sin थीटा, and here this will be just copied, then it will be cos theta minus sin theta upon cos theta. Then denominator का denominator इससे मल्टीप्लाई होगा, that is this cos theta will be multiplied by this and this sin theta will be multiplied by this one. So ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin इससे. सो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा. अब इसके बाद यहाँ पे हम देखें sin थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ पर है cos थीटा माइनस sin थीटा. तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बिकम sin थीटा माइनस cos थीटा, और उसके लिए बस हमें यहाँ चेंज करना होगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा. यहाँ पे हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, और ये हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया. फिर उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, और इन अ ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा.
इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे एंड दिस विल बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देन अब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, सो वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी एंड दिस विल बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसकी आइडेंटिटी में a माइनस बी दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा एंड साइन। अब इस कॉस थीटा और साइन थीटा को 1 और इसके नीचे दोनों को अलग अलग करने के बाद हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया ना। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा सेक थीटा cosec theta plus 1 that is equals to your RHS, hence proved. Now we are having the fourth part of the question number 5 and in this one we are having 1 plus sec a upon sec a equals to sin square a upon 1 minus cos a। इस क्वेश्चन को हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं। सो हियर RHS sin square a को हम लोग लिख सकते हैं 1 minus cos square a because साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। देन 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दैट इज 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस cos a। cos a का रेसिप्रोकल होता है sec a, so this can be written as 1 plus 1 upon sec a। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा sec a और यहाँ पर हो जाएगा sec a plus 1 that is equals to your LHS, hence proved। Now we are having the fifth part of the question number 5। In this one we have to prove that cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals to cosec a and cot a। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पर cos a दिया हुआ है, cos a sin a, और यहाँ पर cosec और cot में रिलेशन दिया गया। अगर हम cosec और cot को sin और cos में चेंज करें तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन और यहाँ पर होगा cos अपॉन साइन, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर साइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। सो इन LHS इट विल बी रिटन एज cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल ऑफ ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। फिर ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे दोनों जगह पे। फिर cos a अपॉन साइन ए दैट इज cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए दैट इज cos a होल अपॉन cos a अपॉन साइन ए अगेन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। नाउ हम इस माइनस 1 को इस पे लास्ट में पहुंचा देते हैं एंड दिस विल बिकम cot a प्लस
cosec a माइनस वन होल अपॉन, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे डिनोमिनेटर को, cot a प्लस वन माइनस cosec a। नाउ हमें एक रिलेशन मिला हुआ है cot स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए, एंड दैट इज cot स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए। अगर हम वन को उधर भेजें और cosec को इधर ले आते हैं, सो दिस विल बिकम cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस वन। दैट इज माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो होगी cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर। सो वी कैन रिप्लेस दिस वन बाय दैट, एंड दिस कैन बी रिटन एज cot ए प्लस cosec ए, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और माइनस वन की वैल्यू ये प्लेस करेंगे, दैट इज प्लस cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल दिए, और डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी करेंगे, cot ए प्लस वन माइनस cosec ए। देन यहां पर हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लेते हैं, एंड दिस विल बिकम cot ए प्लस cosec ए, और प्लस ये आइडेंटिटी से ओपन होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज cot ए प्लस cosec ए एंड cot ए माइनस cosec ए होल अपॉन दिस होल, दैट इज cot ए प्लस वन माइनस cosec ए। देन हम इस cot ए प्लस cosec ए को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, एंड दिस विल बिकम cot ए प्लस cosec ए, और हमारे पास जो बचेगा यहां से वन बचा, और इसमें से ये पूरा ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज cot ए माइनस cosec ए होल अपॉन cot ए प्लस वन माइनस cosec ए। अब ये ब्रैकेट और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दैट इज प्लस वन प्लस cot ए एंड माइनस cosec ए माइनस cosec ए। सो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास बचेगा cot ए प्लस cosec ए, दैट इज इक्वल्स टू योर RHS, hence proved. Now we are having the sixth part of question number 5, and in this question we are having 1 plus sin a upon 1 minus sin a in root equals to sec a plus tan a। इसमें हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं इसको, and this will be equals to 1 plus sin a upon 1 minus sin a। फिर हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब न्यूमरेटर में तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इन होल रूट। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए टू द होल रूट। फिर हम इस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और दिस विल बिकम होल रूट अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टू द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर इस कॉस को हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए सेकेंड, और साइन अपॉन कॉस ए दैट इज tan, and this is equals to your RHS, hence proved. Now we are having the seventh question, and in this question
वी आर हैविंग साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसमें न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बिकम साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, यहां से हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। सो दिस विल बिकम कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा हो जाएगा। देन जो अंदर की वैल्यू है 1 की जगह पर हम लोग प्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन इन डिनोमिनेटर ऑल्सो 1 की जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस करेंगे, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी माइनस में है तो इसके दोनों साइन माइनस में होंगे, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा tan थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, और हमारे पास बचा सिर्फ tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। Hence, we are having the 8th part of the question number 5. And in this question, we have to prove that sin theta plus cosec theta to the whole square plus cos theta plus sec theta to the whole square equals to 7 plus tan square theta plus cot square theta. So यहाँ पर भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ओपन करेंगे। सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब यहां पर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। Then sin square theta plus cos square theta, that is equals to 1. So we can write 1 over here. Then cosec square theta की रिक्वायरमेंट हमें RHS में नहीं है, so we can replace this one by 1 plus cot square theta, क्योंकि cot square theta की हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ से 2 हमें बच गया। देन ये cos हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देन sec square theta, sec की भी रिक्वायरमेंट इधर नहीं है, we require tan square theta, so we are going to replace this sec square theta by 1 plus tan square theta. Then we are left with this plus 2, इसको हमने लिख लिया। Then we are 1 plus 1 2, 2 plus 2 4 5 and 6 7. So we are left with 7 plus cot square theta plus tan square theta, that is equals to your RHS. Hence proved. Here we go with the 9th part of the question number 5, and in this one we are having cosec a minus sin a, then into sec a minus cos a, and we have to prove 1 upon tan a plus cot a. So we are going to start with the LHS. In this one, cosec a can be written as 1 upon sin a minus sin a, and here sec can be written as 1 upon cos a माइनस cos a। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकता है, और ये साइन ए इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ए एंड कॉस ए। नाउ ये तो हमारे LHS का पोर्शन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द RHS।
इसमें आर एच एस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम लोग. सो आर एच एस इक्वल्स टू, ये हमें दिया है 1/tan ए एंड cot ए. तो tan ए को लिख सकते हैं हम लोग sin a अपॉन cos ए, और cot ए को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin. देन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, वो 1 अपॉन ये हो जाएगा sin a cos ए, और ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विल बिकम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. फिर 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा. सो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और इसी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड दिस विल बिकम साइन ए कॉस ए. अब यहाँ का एलएचएस और आरएचएस दोनों ही साइन ए कॉस ए हो रहा है. सो एज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, hence proved. That's all in this video. Thank you.